Good morning, my dear student. Today I will teach you composition of functions. Now, what is composition of function? The process of combining two or more function is known as composition of function. तो दो या दो से अधिक फंक्शन को जो कंबाइन करने का पैटर्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. इट मींस देखिएगा हम कंसीडर करते हैं लेट we have three non-wide set. We have three non-wide set A, B and C. Let A, B, C be non-wide set. हमने कंसीडर किया हमारे पास तीन non-wide set है. Let us consider two function. Here function f defined from set A to set B and another function z defined from set B to set C. Now, what is the meaning of function from set A to set B? It means for all x belongs to A. For each, क्या लिख सकते हैं? For all x belongs to A, there will exist fx, which is belongs to second set B. Right? So f is a function from set A to set B. It means for all elements of set A, ठीक है, there will exist f image of each element of set A with the set B. Now here g is another function from set B to set C. Hence for each element that is fx belongs to set B, there will exist a unique elements belongs to set C. Now here fx यहाँ पे लिख सकते हैं for all fx belongs to set B, there will exist a unique elements which is belongs to the set C. That is here g function, input of the g, that is f of x belongs to the set C. Now if we combine these two functions f and g, then we got g of fx. Now to golf g of fx generally can be written as golf. तो g of fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? golf, that is g of fx, which is the function from set A to set C. It means for all elements of set A, there will exist a g image, ठीक है, within the set C. It means g of fx is a function from set A to set C. तो अगर हम लोग इसको वेन डायग्राम से समझें तो देखिए हमारा क्या हो सकता है. Here consider set A, now second set B, here another set that is set C. नेम भी इसका ले देते हैं, set A, set B and here set C. Let us consider in this set A, element x belongs to the set A. That's why for each x there will exist fx belongs to set B. Here fx, here it is the function from set A to set B. Now another elements from f, for each elements belongs to B, there is another image in the g, that is here g of fx. Here this is the function from set B to set C. Now if we take for all x, there will exist a g image in the set C. That's why here from set A to set C define a new function that is known as golf. Right? So this is all about the composite function. Right? Now write down here. आप सभी लोग इसको राइट डाउन कर चुके होंगे. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके. दूसरे में अगर हम इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में समझना चाहें, ये कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा जो
ऑपरेटर है या मशीन है x है, और इस ऑपरेटर यानी मशीन का जो आउटपुट है ये इस साइड आएगा। आपको पता है कोई भी मशीन वर्क तभी करेगी जब हम उसमें क्या देंगे, कोई न कोई इनपुट देते हैं। लेट अस कंसीडर इस फंक्शन या इनपुट हमने दे रखा है x, तो यहां से जो आउटपुट आएगा वो आएगा fx। नाउ another machine या another function that is known as g. Now output of the first function will become the input for the second function. That's why here the output from the second function is g of fx, that is known as gof, right? तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं या आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। Now what is the term condition for function to exist? Now here एक आप नोट लिख सकते हैं या एक पॉइंट करके लिख सकते हैं, gof x is equals to g of fx। तो कभी भी gof x लिखना हो तो आप लोग लिखेंगे g of fx। सेकंड पॉइंट fog x, तो fog x की बात करेंगे तो f of gx। Now another point, gof exist if and only if, that is short form IFF। तो gof exist if and only if range of f is subset or equal to domain of Z। Now similarly fog exists if and only if range of G is subset or equal to domain of F, right? डोमेन ऑफ f। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। उससे पहले आप इसको राइट डाउन करें। आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट R be the set of real number, let R be the set of real number and if f is a function from real number to real number, here defined as fx equals to x square and g is the function and g is the function from the set of real number to real number, defined as here gx is equals to 2x plus 1. Then find fog and gof, also show that fog is not equals to gof। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, एक दो
दो हमारे फंक्शन है f है और g है जो इस प्रकार से डिफाइन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं f(x) is equals to x square and gx is defined as a linear function 2x plus 1. Now for the form here हम जानते हैं फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ g is the subset of domain of f. Here range of g is the subset of domain of f. That's why fog exists. सबसे पहला कंडीशन हम जरूर देखेंगे। तो fog exists, fog can be written as here f(g(x) is equals to f within bracket here gx. Now what is the value of gx? तो gx हम देखेंगे कितना है 2x plus 1. Now put the value of gx in the input of fx. अब हम लोग देखेंगे f के इनपुट में क्या है 2x plus 1 और 2x plus 1 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ x को हम रिप्लेस करेंगे 2x plus 1 से. इट मींस हियर 2x plus 1 at the place of x whole square. ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया fog. सिमिलरली gof, for the gof, तो gof अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा इट मींस range of f is the domain of g. Here range of f is the domain of g. That's why here gof को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं gof x is equals to g of fx. Now in the input of g fx, what is the value of fx? Fx is equals to x square. Now in the input of function g, x square at the place of x, here gx x के प्लेस पे राइट डाउन करना है x square. It means 2 at the place of x square plus 1, that is equals to 2x square plus 1. Here from the equation इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. From equation first and second, fog is not equals to gof. देखिए कितना इजी है क्वेश्चन है. fog is not equals to gof. Okay, write down. ओके, आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. जस्ट सेम पैटर्न का. लेट f is a function from r to r. Here fx is equals to sin x and g is a function from real number to real number defined as, it means gx is equals to x square. Find fog and gof. Find fog and gof. ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, तो अब हम देख रहे हैं हमारा fx है और ये हमारा gx है. फॉग और gof को हमें फाइंड आउट करना है. तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करें, फॉग को फाइंड आउट करना. फॉग को हम जानते हैं कैसे लिखेंगे, f(g(x). इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, f ब्रैकेट में gx. अब हम लोग gx की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी रखेंगे. तो gx हमारा कितना है x स्क्वायर. अब हमको fx स्क्वायर फाइंड आउट करना है और जानते हैं fx स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पे x स्क्वायर राइट डाउन करना है. इट मींस हमें यहाँ मिल जाएगा sin x के प्लेस पे हम लोग राइट डाउन करेंगे x स्क्वायर. ये हमें मिल जाएगा फॉग. इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं. नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है गॉफ. गॉफ को हम जानते हैं कैसे लिखेंगे, g
सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी यहाँ पे g होगा, fx हमारा है यहाँ पे sin x। अब हमको g sin x फाइंड आउट करना है। g sin x फाइंड आउट करने के लिए x के प्लेस पे हम लोग राइट डाउन करेंगे sin x। इट मींस हियर x के प्लेस पे लिखेंगे sin x होल स्क्वायर। सो sin x के होल स्क्वायर को राइट डाउन कर सकते हैं sin स्क्वायर x। ओके, इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं फॉग और गॉफ हमने क्या किया है, फाइंड आउट कर दिया है। अगर हमसे ये शो करने के लिए बोला जाता फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ, तो हम जानते हैं sin x स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू sin स्क्वायर x, बट ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग वहां पढ़ेंगे composition of function is not commutative, it means fog is not equals to gauge। और वैसे भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको राइट डाउन करें आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेट f is a function, here डोमेन आपको दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सेट 2 3 4 and 5 and here its codomain is 3 4 5 9 and g is function, here domain 3 4 5 9। तो सेट कोडोमेन आपका है 7 11 and 15। ओके, b function defined as f2 is equals to 3, f3 equals to 4 and here f4 is equals to f5 is equals to 5 and here another g3 is equals to g4 is equals to 7 and g5 is equals to g9 is equals to 11। हमें यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड गॉफ। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले गॉफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखें क्या होना चाहिए कंडीशन, रेंज ऑफ fx इज द डोमेन ऑफ gx। क्या ऐसा है क्या? तो रेंज ऑफ fx की हम लोग बात करें तो fx का जो रेंज है 3 4 5 9 और यहाँ पे देखिए g का डोमेन भी 3 4 5 9 है। यहाँ से लिख सकते हैं here range of f is subset of, अब साइन के भी फॉर्म में लिख सकते हैं डोमेन ऑफ g, that's why गॉफ exists। now we have to find गॉफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो गॉफ होगा ये डिफाइंड होगा फ्रॉम सेट A to set C, here set A, here set B and C, that's why गॉफ is defined from set 2 3 4 5 to this set output of G, that is 7 11 and 15। अब ये हमारा फंक्शन है तो 2 3 4 5 का इमेज होना चाहिए 7 11 15 में से। तो यहाँ से लोग चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फाइंड आउट करेंगे गॉफ एट द प्लेस ऑफ x1, दैट इज g विद इन ब्रैकेट हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे x के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे f1 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी, तो यहाँ से सॉरी ये 2 है
तो यहाँ पे हमारा सॉरी 2 होगा। नो F2, तो F2 की हम लोग वैल्यू देखें कितनी है, 3 है, तो हम लोग यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं F2 के प्लेस पे 3। नाउ G3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G3? तो G3 हमारा कितना है, 7 है, तो G3 इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरीके से हमारा GOF2 आ गया है। नाउ GOF सेकंड एलिमेंट्स 3 is equals to G F of 3. Now what is the value of F3? F3 is 4. Now here G F3 के प्लेस में हम लोग राइट डाउन करेंगे 4, तो G4, तो G4 हम लोग देख रहे हैं कितना है, 5 है। Now again इस साइड हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे GOF। Now next element is 4 is equals to G here F4, right? तो F4 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, F4 is 5, तो G यहाँ से हम लोग राइट डाउन करेंगे 5, तो G5, तो G5 हम लोग वैल्यू देखें कितना है, 11 है, तो G5 is equals to 11, ठीक? तो G5 हमारा कितना है, 11 है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ पे G4 हमारा 7 है, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, G3 G4 both are 7, right? Here G5 is 11. Now and GOF for the elements here 5 is equals to here G F5. Okay. Now what is the value of F5? F5 is also 5. That's why here G5 or G5 is again 11. ओके। नाउ तो अब हम लोग GOF को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, हम लोग राइट डाउन करते हैं GOF इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर फॉर्म में इनपुट हमने 2 दिया, इनपुट हमने क्या दिया, 2 दिया, तो आउटपुट हमारा है 7, तो 2,7। नाउ इनपुट हमने 3 दिया, तो आउटपुट हमारा है 7, इनपुट हमने 4 दिया, तो आउटपुट आ रहा है 11, और इनपुट हमने 5 दिया, तो आउटपुट आ रहा है 11, ठीक? ये हमारा क्या डिफाइन हो गया है, GOF डिफाइन हो गया है। तो इसको राइट डाउन करें आप, ओके? आप लोग इसको राइट डाउन कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाउ लेट f is a function from set 1 3 4 to 1 to 5, जस्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एंड z is another function from set 1 to 5 to the 1 3 be given by f is equals to here 1 comma 2, it means f1 equals to 2 in order pair form में given है, 3 comma 5 4 comma 1 and g is equals to 1 comma 3 2 comma 3 and 5 comma 1. Write down GOF, write down GOF। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है,
It means range of f is the subset of domain of G. That's why GOF exists. Now अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिखते हैं फंक्शन के फॉर्म में f1। तो हमने जब इनपुट 1 दे रखा है जिसका आउटपुट कितना आया हुआ है 2। नाउ f3 is 5। नाउ f4 is equals to 1। ओके, g के बारे में बात करते हैं तो g1 is 3, g2 is 3 and g5 is 1। Here g1 is 3, g2 is 3 and g5 is equals to 1। ओके, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा देखते हैं गॉफ जो हमारा फंक्शन है वो किस सेट से किस सेट पे डिफाइन है। तो गॉफ हमारा जो होगा f का इनपुट दैट इज 1, 3 and 4 और जो इसका आउटपुट की अगर हम आपसे बात करें तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1 और 3। तो ये हमारा देखिएगा फंक्शन है जिसका डोमेन 1, 3, 4 है और जो को डोमेन है 1 and 3 है। तो मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना है गॉफ एट पॉइंट 1। इनपुट हमारा कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं g ऑफ f1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? f1 इज 2। तो f1 की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। तो g2 is 3। नाउ another is gauge here 3 सेकेंड एलिमेंट्स। तो g यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे f3। यहाँ से g f3 की हमारी वैल्यू कितनी है 5 है। तो ये देखिए g5 and g5 is 1। ओके, नाउ तो अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है गॉफ एट पॉइंट 4 इज इक्वल्स टू g। आप बोल सकते हैं यहाँ पे राइट डाउन क्या करेंगे f4। ओके, यहाँ से g f4 की वैल्यू बोलो कितना है f4 is 1। यहाँ से हम लोग 1 राइट डाउन करेंगे और g1 की बात करेंगे यहाँ से g1 हमारे पास कितना है 3 है। ओके, हम लोग देखते हैं हमारे पास तीनों इनपुट के लिए हमारे पास आउटपुट आ चुके हैं। अब हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। तो गॉफ इज इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 इनपुट पे आउटपुट 3 आया हुआ है तो 1, 3। यहाँ पे देखेंगे सेकंड 3, 1 एंड लास्ट इज 4, 3। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसे फर्स्ट राइट डाउन करें। ओके, आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारा क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड गॉफ एंड फॉग। ओके, क्या क्वेश्चन है हमारा फाइंड फॉग एंड गॉफ। Find fog and gauge if f is a function from real number to real number and g is also a function from real number to real number और given by, देखिए इस प्रकार से आपका given है और given by here fx is equals to mod of x okay, fx is equals to mod of x and यहाँ पे हम लोग gx देखते हैं तो gx is equals to mod of 5x minus 2। आप लोग इसे राइट डाउन करें फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग का जो क्वेश्चन है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f is a function from R to R and g is function also from R to R
are given by fx is equals to mod of x and gx is equals to mod of 5x minus 2। तो अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, गॉफ और फॉग दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले गॉफ फाइंड आउट करते हैं। तो गॉफ को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, GOF विद इन ब्रैकेट x। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे तो g ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अभी तक लिखते भी आए हैं fx, राइट। तो अब हमको गॉफ फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे ऑलरेडी f का जो रेंज है वो g का क्या है, सबसेट है, g के डोमेन का सबसेट है। रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, दैट्स व्हाई गॉफ इज डिफाइंड एंड आल्सो फॉग इज आल्सो डिफाइंड बिकॉज़ ये रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। तो हम लोग यहाँ पे fx को पुट करते हैं, तो और हमारा जो यहाँ पे fx है, fx इज इक्वल्स टू mod ऑफ x। तो हमको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, g mod ऑफ x। तो g हम mod ऑफ x की बात करेंगे तो g के इनपुट में x को रिप्लेस करना है mod ऑफ x से। यहाँ से देखें हमारा क्या आ जाएगा, 5x को हमने रिप्लेस किया mod ऑफ x minus 2 होल mod। इसको हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्योंकि हम मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं। तो गॉफ इज इक्वल्स टू, अब पता है मॉड ऑफ x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन मॉड ऑफ x इज x, दैट्स व्हाई हियर 5x minus 2 when x is greater than equals to 0। अब mod of x नेगेटिव देगा कब, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। तो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं माइनस 5x minus 2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के हटा भी सकते हैं तो 5x plus 2 मिल जाएगा, बट यहीं पे हम इसको छोड़ते हैं। ये हमारा गॉफ फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है फॉग। तो फॉग की बात करेंगे FOGX, इसको हम लोग लिखेंगे f विद इन ब्रैकेट gx। अभी तक ऐसा हम लोग कर ही रहे हैं। तो gx की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, f gx की वैल्यू mod ऑफ 5x minus 2। ओके, अब 5 mod 5x minus 2 x के प्लेस पे रखना है, इसमें fx में, तो अगेन हमको मिल जाएगा mod x, x के प्लेस पे क्या रहेगा, mod 5x minus 2। ओके, तो हम जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी से यहाँ डबल मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो आप डबल मॉड को सिंगल मॉड में कन्वर्ट करेंगे, अगेन आ जाएगा 5x minus 2। Hence fog is equals to mod of 5x minus 2। ओके, राइट डाउन फर्स्ट। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ f is a function from real number to real number is defined as fx is equals to your x square minus 3x plus 2, find f of fx, f of fx। तो अब मुझे यहाँ पे देखिए क्या फाइंड आउट करना है, f of fx फाइंड आउट करना है। तो इसे हम लोग रफ कर लेते हैं। ओके, देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है f of fx। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन किया f of fx मींस ऑफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं f of f। तो f, अब हमने fx को यहाँ ब्रैकेट में लिखा, कितना fx की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, अगेन हम इंसर्ट करेंगे एट द प्लेस ऑफ x को हम लोग रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये लिखेगा x के प्लेस पे राइट डाउन करना है x
square minus 3x plus 2 होल स्क्वायर माइनस 3, अगेन x के प्लेस पे राइट डाउन करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस हमारा कितना है 2। अब इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 3 9 x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2 2 4 माइनस 2ab 2 3 6 x स्क्वायर इनटू x x क्यूब माइनस 3 2 6 2 आपको मिल जाएगा x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 3x, ये हमारा आ जाएगा f ऑफ fx। ओके, नाउ इसको राइट डाउन करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if f is a function from z to z be defined by fx equals to x plus 2, fx is equals to x plus 2, find, क्या फाइंड आउट करना देखिएगा, find z from z to z such that golf is equals to iz। ओके, तो golf हमारा जो है z से z पे आइडेंटिटी फंक्शन है, iz मींस ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। हमको गिवन है golf is equals to iz। आइडेंटिटी फंक्शंस में जो इनपुट देंगे वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। golf को हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं g ब्रैकेट में क्या हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग iz को क्या लिख सकते हैं izx। तो अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा gfx, ये हमारा है, इसको अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो gfx हमारे पास गिवन है, तो fx की वैल्यू हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं x प्लस 2, तो gx प्लस 2। ये देखिए जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो izx को हम लोग सिंपली क्या राइट डाउन कर सकते हैं x राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, gx फाइंड आउट करना है। यहाँ पे है कितना x प्लस 2, यहाँ से हम लोग कंसीडर करेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y। हमने क्या कंसीडर किया, x प्लस 2 को y कंसीडर किया, यहाँ से हम लोग x फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा y माइनस 2। अब मुझे क्या करना है, x प्लस 2 के प्लेस पे y लिखना है, ये देखिए हमें मिल जाएगा gy इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे राइट डाउन करना है y माइनस 2। ये देखिए हमको मिल गया है gy। अगर हम यहाँ पे y को x से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा gx इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे राइट डाउन करें फास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेम पैटर्न का f is a function from real number to real number be defined by f of x is equals to 2x, f of x equals to 2x for all x belongs to R, find z is function from R to R such that
यहाँ इंटीजर से इंटीजर पे फंक्शन डिफाइन था और यहाँ पे रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या करना है इस पे। तो गिवन क्या है हमारा ये देखते हैं। गिवन है गॉफ इज इक्वल्स टू आई आर। तो इसे हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं गॉफ एक्स इज इक्वल्स टू आई आर एक्स। और आपको पता है आइडेंटिटी फंक्शन में जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। आप इसको ट्रांसपेरेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए गॉफ को हम लोग कैसा राइट डाउन कर सकते हैं। जी ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स राइट डाउन कर सकते हैं। आई आर एक्स को जनरली हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, क्यों, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, राइट। तो अब देखिए एफ एक्स हमारा यहाँ पे है और एफ एक्स की वैल्यू गिवन है। तो जी एफ एक्स के प्लेस पे हमने राइट डाउन कर दिया 2x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा x। लेकिन फाइंड आउट मुझे क्या करना है, gx फाइंड आउट करना है। तो पिछले की तरह लेट यानी माना 2x इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू y अपॉन 2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2x के प्लेस पे y सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो gy इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे y के फॉर्म में y अपॉन 2। अब वेरिएबल चेंज कर देंगे, यहाँ से y को रिप्लेस किया हमने x से। तो जहाँ जहाँ y दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्या राइट डाउन करेंगे, x राइट डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड आउट हो गया है, gx फाइंड आउट हो गया है। ओके, राइट डाउन। ओके, आप लोग राइट डाउन कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट f is a function from real number to real number and g is function from real number to real number be two function such that for x is equals to sin x square, for x equals to sin x square and gof x equals to sin square x. Then find fx